હા તો હું મારો આન્સર આપું. હમ. મને જે લાગે છે, સી આપણે એમ કહીએ કે there is some reason. સ્વાતિબેન વેલકમ. કેમ છો? એકદમ મજામાં. બરાબર. ગાંધીનગર સમાચારમાં એવું સમાચાર આવ્યું હતું કે સ્વાતિબેન આજે બહુ લેટ સુધી સુવાના છે. આજે કેમ જલ્દી ઉઠી ગયા? અરે ફ્રી સોલ નો એલાર્મ વાગ્યો એટલે વાહ. એટલે ઉઠી ગયા. વેલકમ પરીક્ષિત. સર ગુડ મોર્નિંગ. ગુડ મોર્નિંગ. તો સ્વાતિબેન, મંથનભાઈએ એક સરસ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે હમ. કે એસ્ટ્રોલોજી ને બધું કેવું છે, એમ સાચું છે નથી સાચું, કેવી રીતે ચાલે, કે મેચ છે કે બીજું કઈ છે, આવું ક્વેશ્ચન પૂછ. એને કે હવે તારે શું જરૂર છે એસ્ટ્રોલોજી ની? શું જરૂર છે મંથનભાઈ? હમ. મારે કઈ જરૂર નથી. મારે ખાલી ક્વેશ્ચન છે કે જે મતલબ પીપલ આર બિલીવ. પોડકાસ્ટ કરવું છે? પોડકાસ્ટ નથી કરવું. પોડકાસ્ટમાં અત્યારે એ સિવાય કઈ નહીં. એસ્ટ્રોલોજી હું માનતી નથી, એટલે એના વિશે હું જાજી કોઈની યાર વાત જ નથી કરતી. ખોટી ચર્ચાઓ થાય એના કરતા આપણે એ બાબતે બોલવું જ નહીં. જેને માનવું હોય એ માને, ના માનવું એ ના માને. એક ગણિત છે, પણ એના કોઈ અત્યારે એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન એટલું કોઈ કરી શકતું હોય એવું કઈ મને લાગતું નથી. યસ. સો મંથનભાઈ, મારી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ બી આટલા ટાઈમમાં એ જ બની છે કે આ એક મેથેમેટિકલ ઇક્વેશન છે, અને બહુ બધા લોકો એને સોલ્વ કરવાનો ટ્રાય કરે, થોડું ઘણું સોલ્વ કરે છે, ફેલ થાય છે, મિસઇન્ટરપ્રેટ કરે છે. But it's a technology used to mathematically predict what is going to happen. It is very similar to how you know that your plant at home will bend towards the direction of the sun to receive sunlight. So there is an equation that happens over there, and this is what it feels like to me. Okay? It's an equation that everybody, somebody has developed, and then people have evolved it, and then now trying to say say that this is the direction the plant will bend using whatever equations they understand. Now, one is observability in it, that this happens, that happens. That's how that must be developed, this technology. The second thing that I have understood is whether it is belief, whether you believe in astrology or you don't believe in astrology, this matters in the experience of you going through the astrology. And when I'm saying believe, when I'm saying you believe, is the Atma or Jivan inside you that believes in the process. And that way, forget about astrology. Sometimes it happens that a friend of yours says, you know what, you should do this. Or a friend of yours says, you should not do this. And that person also, and you believe in that person or you don't believe in that person, and that choice of yours will make a difference in how you perceive the next actions, and those could transform the direction of the outcome. So માનવું કે નહીં માનવું is one important factor. I think
in how you perceive that experience. Perfect. But one more important question when people ask behind the scene of what is astrology, they also are trying to ask that is life already written, that this is what is going to happen? And so, if that is the case, then do we have free will? That's an, underneath question. Sometimes people ask, I'm not sure if you also ask that, but I have a thought on it that in my understanding so far, life is not already written. Life is not pre-designed. Now, is there any other question that arises from what I shared? ના મતલબ બીજો કોઈ ક્વેશ્ચન નથી. we can start the મોક્ષા અને આના માટે તો મોક્ષ અને આ બધું ડિસ્કસ કરતા રહીશું. Okay. Ajay bhai, welcome. Good morning, Subhash bhai. Good morning. स्वाति, अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया उसमें कोई क्वेश्चन? નહીં 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 કોઈ ક્વેશ્ચન નહીં. परीक्षित, कोई क्वेश्चन? નહીં મારા નાના પોતે એસ્ટ્રોલોજી બહુ સારું જાણતા અને એ ઘણું બધું એના વિશે કહેતા. પણ સાથે સાથે એ મને જે કન્ટ્રાડિક્શન્સ હોય એ પણ મને બતાવતા કે જો જે બાબતે હું આ જોઈ શકું છું કે હું આ માનું છું એ બાબતે બીજાએ આવું કહેલું છે. એટલે પહેલેથી જ આ બધું આટલા બધા અંદરો અંદર બધા ડિફરન્સીસ જોઈને મને એમાં કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નહોતો પડતો પહેલેથી. હા, કેમ કે તમારો ઇન્ટરેસ્ટ એમાં છે કે ભાઈ જો કહેતા હોય તો સાચું કહેજો એમ બધું. અલમોલ તમે લોકો એક જણ આમ કે જેમ તેમ કે એમાંથી નહીં થાય. So, અને કોઈ તમને તમારું ભવિષ્ય કહે અને તમે એની રાહ જોઈને બેસી રહો, ના બટ ઇટ્સ લાઈક એ તમારા મગજમાં જ નથી ઉતરતું. ના ઇટ્સ લાઈક એ ગૂગલ મેપ. આગળ ખાડો છે ને એ તમને દેખાડશે. હવે તમારે ખાડામાંથી ધીમે જવું, ખાડામાં પડીને જવું કે રસ્તો બદલીને જવું. દેટ ઇઝ સમથિંગ. કેમ કે ન્યુમરોલોજી મતલબ ન્યુમરોલોજી જે છે જ આઈ થિંક આપણા સિલેબસમાં છે. તો ન્યુમરોલોજી ડિફાઇન હાઉ ઇઝ યોર નેચર, ઓકે, and how you behave in certain condition based on your numbers. So એ ઇન્ટરપ્રેટ કોણ કરે છે? સ્વાતિબેન, મેં તમને છે ને એક વસ્તુ કહું જો. તમે ગુજરાતમાં તમારો જન્મ થયો, રાઈટ, અને ગુજરાતી ફેમિલીમાં થયો, तो आपको लगता है कि आपके ऊपर उसका असर हुआ आपके जीवन पे? यस, नो? हाँ, राइट. यस. नाउ आपको क्या लगता है आपके जन्म के पहले जब आप पेट में थे तब जो भी सिचुएशंस आजू बाजू थी, आप जिस सिचुएशन में पैदा हुए या जो प्लैनेट्स का क्या बोलते हैं पोजीशन था उस टाइम पे, उसका आप पे असर नहीं हुआ? मतलब अगर जन्म के बाद जिस सिचुएशन में आप हो उसका असर आप पे हो रहा है, जन्म के पहले आप जिस सिचुएशन में थे
उस समय गुजरात नहीं एप्लीकेबल है ना, उस समय तो पूरा अर्थ, पूरा पूरा और बाकी सब भी एप्लीकेबल है। हम्म अभी आप क्या है, मतलब जो असर है वो हम सिर्फ अगर उससे देखें कि भाई मेरे को क्या भाषा आती है, मैं कैसे कपड़े पहनता हूँ, मैं कैसे हम्म स्टाइल बनाता हूँ, या मेरे बाल गोल्डन कलर के हैं या ब्लैक कलर के हैं, उससे फर्क पड़ रहा है ना। और बाकी भी जब आपका जन्म नहीं हुआ है तब तो पूरा जो एनवायरनमेंट है, सन का, हम्म अर्थ का, बाकी सारे प्लैनेट्स का, या किस हम्म लोकेशन पे आपका जन्म हो रहा है, तो वो उसका असर है ना। उससे नहीं नहीं, नहीं, उससे क्या होता है मैं आपको बिफोर बता, बर्थ, आफ्टर लाइफ। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है, आई एम जस्ट टेलिंग शेयरिंग विद यू व्हाट आई मे बी रॉन्ग। क्या होता होगा कि जैसे अभी मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि अगर किसी का जन्म ऐसी फैमिली में, ऐसे सिचुएशन में, इस जगह पे हुआ है, राइट, तो वो पर्सन है ना, कल वहां पे या 10 साल में वहां पे कोई ऐसा खतरनाक चाइना जैसा सिचुएशन नहीं बन जाएगा। आप सिटी नहीं खड़ा कर पाओगे, ठीक है। और सेम पर्सन अगर कहीं सैन फ्रांसिस्को में जन्म होता या बीजिंग में जन्म होता, और उसके अगल बगल जो सिचुएशन है उसको देख करके मैं प्रेडिक्ट कर सकता था कि ये ऐसा ऐसा होगा, राइट, पॉसिबिलिटी है। तो मुझे लगता है कि जो एक्सटर्नल सिचुएशंस होती है ना, वो कहीं ना कहीं हमको शेप और डिजाइन करने में हेल्प करती है। और इन लोगों ने क्या किया होगा ओवर द टाइम है ना, बहुत लोगों को स्टडी किया होगा, डेटा लाया होगा अलग अलग जगह से कि कहाँ कब क्या जन्म हुआ, और उसकी पूरी लाइफ डॉक्यूमेंट करो। और वो डॉक्यूमेंटेशन से उन्होंने इस तरीके का एक चीज निकाला होगा कि भाई क्या 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 कैसे कैसे होता है। सो इट्स अ, ये है कि नजर में बोले या उसके स्टैटिस्टिकल के नजर में बोले तो ये एक प्रिडिक्टेबल फॉर्मूला है जिसको डेवलप किया कि भाई ऐसा 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 ये कंडीशन होगी, इसके ये केमिकल के बाद ये केमिकल आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, तो इस तरीके का सुगंध आएगा। और बहुत एक्सपेरिमेंट्स करो तो हो जाता है, राइट। ऐसा मुझे लगता है। सही बात। सो अभी मोक्ष पे आते हैं। तो लास्ट टाइम हमने जीवन विद्या ये नागराज जी का देखा था डेफिनेशन अराउंड मोक्ष। अभी नेक्स्ट इज तांत्रिक पर्सपेक्टिव। इसका इनका ये जो तंत्रास है अलग अलग हमारे इसमें, क्या बोलेंगे, सनातन धर्म बोलेंगे या हिंदू फिलॉसफी में, उसका एक पर्सपेक्टिव है जिसमें कहा गया है लिबरेशन इन दिस वेरी लाइफ। मतलब इसी लाइफ में लिबरेशन मिलना है, मुक्ति या मोक्ष मिलना है, उसको वो जीवन मुक्ति बोलते हैं। द बॉडी एज अ व्हीकल फॉर ट्रांसेंडेंस। ये जो भी मुक्ति हमको पानी है, वो मुक्ति हमको हमारा जो शरीर है उस शरीर के माध्यम से ही पानी है। शरीर आपका व्हीकल बन जाएगा, गाड़ी बन जाएगी, और उस गाड़ी से आप मोक्ष की तरफ जा सकते। और उसका एक तरीका जो उन्होंने बताया है वो है कुंडलिनी को जागृत करना थ्रू चक्रास। कुंडलिनी मुझे लगता है सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप लोग सर्च कर सकते हो। कुंडलिनी को जागृत करना थ्रू चक्रास। चक्रास और चक्रास को भी मुझे लगता है सबको पता होगा, तो देख सकते हो, नहीं पता है। रिकॉग्निशन ऑफ द डिवाइन इन एवरीथिंग। एक उस उनके पर्सपेक्टिव में ये भी आता है कि जो डिवाइन है, मतलब जो मेरे हिसाब से वो डिवाइन का मतलब क्रिएटर को बोल रहे हैं, वो क्रिएटर जो है, और द टॉप मोस्ट एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, उसको आप रिकॉग्नाइज करो कि वो है। उसको जब आप रिकॉग्नाइज करोगे और कुंडली अवेकनिंग के ऊपर काम करोगे, आपकी बॉडी
वो व्हीकल बनेगी और आपको इसी लाइफ टाइम में जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। ये इनका प्रोस्पेक्टिव है, पर्सपेक्टिव। और उनके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उसमें है कि जो शिवा और शक्ति है उसका यूनियन होना चाहिए। अब वो शिव और शक्ति के बहुत सारे अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। एक इंटरप्रिटेशन है अबाउट मेल एंड फीमेल बॉडीज कमिंग टुगेदर। दूसरा इंटरप्रिटेशन है कि एवरी ह्यूमन हैज मेल एंड फीमेल बॉडी इनसाइड देम, सो उसका एक यूनियन है। तो ये अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं यूनियन ऑफ शिव एंड शक्ति, बट उनके हिसाब से दो अलग अलग एनर्जीज है और उसको उसका एक यूनियन के जो प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल को फॉलो करोगे आप और डिवाइन को रिकॉग्नाइज करोगे हर चीज में, उससे आपकी कुंडली जागृत हो सकती है उस प्रोसेस से, थ्रू चक्रास, एंड आपका बॉडी व्हीकल बन जाएगा ट्रांसेंडेंस के लिए और आपको इसी लाइफ टाइम में जीवन मुक्ति मिल जाएगी। Now this is a very brief explanation of तांत्रिक perspective, but overall kind of ये निकल के आता है। इस पे किसी को कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन नहीं है तो ना नहीं बोलो। नहीं। जो ना नहीं बोल रहा है वो सुन नहीं रहा है, ऐसा मेरे को लगता है। अजय भाई? यस सुभाष भाई, नहीं नहीं कोई क्वेश्चन। ओके। दूसरा है वेस्टर्न फिलोसॉफिकल पैरेलल्स। वेस्टर्न कुछ फिलोसॉफीज है, ये जो हमने बताए वो बहुत सारी फिलोसॉफीज, ये जिस धरती पे हम लोग ऑलमोस्ट सब लोग हैं, धरती के जिस साइड पे, उस साइड से फिलोसॉफीज निकल के आई। अभी कुछ दूसरी वेस्टर्न साइड से भी निकल के आई है। उसमें एक है स्टोइसिज्म। जिसने सुना है अच्छी बात है, नहीं सुना है तो पढ़ो। देयर इज अ फिलोसॉफी कॉल्ड स्टोइसिज्म। उनके हिसाब से आपको फ्री होना है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ नेचर्स लॉ। ये नेचर के कुछ लॉ है और वो लॉ वैसे ही चलता है, उसको एक्सेप्ट कर लो आप। अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे तो आप फ्री हो जाओगे। एंड फ्रीडम हियर मीन्स लिबरेशन। अब नेचर के लॉ का एग्जांपल मैं देता हूं क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि सपोज आप, हमने ही वो, सपोज कहीं बहुत बारिश हो रही है या बहुत बर्फ पड़ रही है, बहुत गर्मी हो रही है, तो हम वहां पर रहते हैं तो हम हमारा इफेक्ट लाते हैं ना कि भाई अरे पता नहीं मेरी किस्मत खराब है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, या वाई इज दिस सिचुएशन दिस वे। So what stoicism in brief says is that all that is happening is nature's law. Accept it. And once you accept it as nature's law, you will experience freedom. And freedom here again means liberation. Existentialism. ये एक दूसरी फिलोसॉफी है वेस्टर्न। ऑथेंटिक existence amid absurdity. उनका ये कहना है एब्सर्डिटी का हिंदी क्या होता है भाई, कोई बताएगा मुझे? मुझे इंग्लिश में समझ में आता है, हिंदी में इसका वर्ड क्या है? अजय भाई रिसर्च करो, सर्च करो ना एब्सर्डिटी सूझे। यस ना कहो। व्हाट इज एब्सर्डिटी इन हिंदी?
विसंगति, अर्थहीनता। हम्म, विसंगति। ये भी समझ में नहीं आएगा। મારામાં તો એબ્સોલ્યુટલી આઈ મૂર્ખતા. લેટ મી એડ એવરીથિંગ ફોર યુ. BSURDITY. विसंगति इज प्रॉपर वर्ड. विसंगति मुझे लगता है सबको समझ में आएगा क्या, इसलिए मैं संगति ऑपोजिट. एब्सोल्यूटिटी का एक और मतलब ये भी होता है कि कोई सिस्टम नहीं है, कुछ भी कभी भी कैसे भी होता है। इलॉजिकल। हाँ, लॉजिक मतलब कुछ भी लॉजिक नहीं है, कुछ भी कभी भी कैसे भी हो सकता है, सब छोड़ दो, दिमाग मत लगाओ। एग्जिस्टेंस जो है, ये पूरा नेचर जो है ना, इसमें कुछ भी कभी भी कुछ भी होता है, और उसमें तुम अपना ऑथेंटिक एग्जिस्टेंस करो। नेचर दुनिया तो एकदम कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई रूल नहीं है, कोई मैथमेटिक्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और इन सब के अंदर भी तुम्हारा एग्जिस्टेंस एकदम ऑथेंटिक रखो, उससे आपको लिबरेशन मिलेगा। ऐसा कहना है वेस्टर्न फिलोसॉफी एग्जिस्टेंशियलिज्म का। ये फिलोसॉफी बहुत डीप में है, आपका एक एक लाइन में नहीं है ये। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ बुक्स ऑन दीज फिलोसॉफीज, तो अगर किसी को इंटरेस्ट है तो बहुत डीप में जाके पढ़ो। ये तो मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं ताकि आप लोग को अंदर कुछ जागे और आप लोग देख पाओ। फिर एक है ट्रांसेंडेंटलिज्म। उनके हिसाब से लिबरेशन आपको मिलेगा जब आप सेल्फ रिलायंस और नेचर के साथ एक हो जाओगे। मतलब आप और नेचर अलग अलग नहीं हो। जो ट्रीज बाहर है वही आपके लंग्स है। आप वैसे अगर जैसे ट्रीट करोगे, ऑक्सीजन आपके बॉडी का पार्ट है, पानी जितना इस समुद्र पे और नदियों में और जमीन के नीचे बह रहा है, वो सारा भी आप ही हो, और आपके अंदर भी पानी है, तो ये सब एक ही चीज है। सन भी आपके बॉडी का पार्ट ही है। ऐसे जब ट्रीट करोगे, एक हो जाओगे आप, एक जैसा आप रहोगे, वननेस विथ नेचर और सेल्फ रिलायंस, मतलब आप किसी चीज पे ऐसे, मतलब क्योंकि आप एक हो गए तो आप क्या है, सेल्फ रिलायंस हो गए ना आप। अब आपको आपको लग नहीं रहा है कि मुझे ट्री की जरूरत है, ट्री मैं हूं। तो उस तरीके से जब आप रहोगे तो आपको लिबरेशन मिलेगा, सेल्फ रिलायंस एंड वननेस विथ नेचर। ये फोर्थ लाइन मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे लगता है इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स है। क्या बोलना चाहता हूँ लिखा समझ में नहीं आ रहा। ओके, फिर जो उसके बाद वाला है मैं उसको छोड़ रहा हूँ। कॉन्टेम्पररी माइंडफुलनेस मूवमेंट। अच्छा, ये मे बी दैट इज द थिंग। सो क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और इस्लाम में है ना कुछ मिस्टिकल ट्रेडिशंस है, और उसमें कहा जाता है कि देर आर सम कॉन्टेम्पररी माइंडफुल मूवमेंट्स। अभी क्या माइंडफुल मूवमेंट्स है वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है इतना, बट इसके बारे में विल रिविजिट दिस इफ समबडी इज इंटरेस्टेड। ઉભા રહો, ચેટ જીપીટી ને પૂછી લે. क्वेश्चन ના જે તમે કહો છો. यू ट्राइंग टू फाइंड इट आउट। હમ. જે સેકન્ડ હતું ને હતું અસ્તિત્વવાદ. બેમાની પન કે બીચ प्रामाणिक अस्तित्व, मतलब कि देयर इज नथिंग इज. थर्ड इज अतिवाद. एंड मतलब बीजू. The fourth one is like, let's say you mentioned there are multiple methods, other methods or tradition available in Christianity, Judaism and Islam, because all those three religion are interconnected with each other, so their traditions are also interconnected. So they believe in different kind of moksha,
Hmm. And there had been some moments during, like, let's say, in 19, I think 1915 or 1500, it was like જે રીતે क्रिश्चियनिटी ना बे पार्ट पड़े, क्रिश्चियनिटी के दो पार्ट पड़े, ऐसे कुछ और माइंडफुलनेस के मोमेंट्स हुए होंगे जो पता नहीं। राइट राइट, नहीं तो मुझे समझ में आ गया। ये जो ऊपर लिए है ना, दीज आर मिस्टिकल ट्रेडिशंस फ्रॉम क्रिश्चियनिटी, जूडिज्म एंड इस्लाम, राइट। वो जेनिश ने ना गलती से लगता है उसको डैश लगा दिया, दैट्स द प्रॉब्लम। ठीक है, मूव करिए नेक्स्ट पर मंथन भाई। यस सर। इफ यू नीड मोर डिटेल्स तो ક્રિશ્ચિયનિટીમાં એને મતલબ ઇસ્લામમાં સૂફીઝમ છે, so that is one method, यस, वन मोर फिलोसॉफी। one more philosophy. Then there are some modern interpretation, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में एक ऑथर है जंग, जुंग जंग क्या बोलते हैं, ही इज ऑल्सो वेरी फेमस। उसका कहना है कि path to liberation is integration of the self. Now by self, what I understand here he means is, yeah, Carl Jung. By integration, by self here he means different uh, interpretation of you by yourself. आप अपने आप को इंटरप्रेट करते हो ना, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ये हूं, मैं ये नहीं हूं। जो भी आप अपने आप को इंटरप्रेट करते हो, उस इंटरप्रिटेशन को इंटीग्रेट करके एक बनाओ, और that is the path with which you can get liberation. Then there is transpersonal psychology. And this psychology says that you have to go beyond the boundaries of your ego. Once you go beyond the boundaries of your ego, that is where liberation is. अभी ये भी मुझे लगता है यहाँ पे भी कुछ लाइन में गड़बड़ है। लेट मी जस्ट फाइंड आउट वन सेकंड। यानी डू यू हैव एक्सेस टू द, जो मैंने तुमको रॉ में लिख के दिया था, तुमने पीपीटी में कुछ गड़बड़ है? नहीं अभी नहीं है। डू यू रिमेम्बर वेयर डिड आई सेंड यू? ईमेल, तो देखना फ्री में। एक मिनट चेक करो। मिल गया, मेरे को मिल गया। हाँ मुझे मिला, वो सेम ही है। ये मॉड ठीक।
हाँ, मॉडर्न इंटरप्रिटेशंस में एक्चुअली क्या है, ये मेन टॉपिक है, इट्स नॉट एनीथिंग कंटिन्यूएशन। द साइकोलॉजी इज वन पार्ट, क्वांटम फिजिक्स इज वन पार्ट, ऐसे। नहीं, पर इसमें इसमें है ना, मैंने वो डिस्क्रिप्शन लिखना मेरा रह गया है, दैट इज द प्रॉब्लम। एनीवे, सो अभी मुझको फिर से मैं इस पे वापस आऊंगा सब। तो अभी हम देखते हैं कि ये सब फिलोसॉफीज में से है ना, कुछ निकल करके हमारे पास में, मतलब अभी ये सारे फिलोसॉफीज तो हमने देख लिए, लेकिन हमको ये शायद समझ में नहीं आता है कि हम इसको, इनमें से क्या क्या हमारी डेली लाइफ में एक्शन ओरिएंटेड थोड़ा ला सकते हैं। आई वांटेड टू मेक श्योर कि इसमें से कुछ निकले तो आप लोग उसको कुछ यूज करो। सो उसमें से कुछ जो छोटी छोटी चीजें निकल के आती है वो ये है कि व्हाट यू कैन आल्सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इज मेडिटेशन एंड कॉन्टेम्पलेटिव प्रैक्टिसेस। कॉन्टेम्पलेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? एनीबॉडी नोस? नो सर, ठीक। कंटेम्प्ररी का मतलब होता है कि आज के टाइम के हिसाब से। सो यू हैव टू, मतलब इट इज रिलेवेंस इन टुडेज टाइम इन एड्रेस। मतलब इन टुडेज एरा, इन टुडेज टाइम, कंटेम्प्ररी का मतलब होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट टाइम। नहीं, वो कॉन्टेम्पररी होता है। दिस इज कॉन्टेम्पररी, आई थिंक सो। It's a current relevance in address of suffering and alienation. Current time. ओके, मतलब मुझे हिंदी में समझाते नहीं आ रहा है, अगर किसी को समझ रहा है तो It's समझाओ। a normal current time in current time. हाँ, मतलब मैं तो देन इसको ऐसे बोलेंगे हिंदी में कि मेडिटेशन एंड मेडिटेशन इन द करंट एंड द यूजिंग व्हाट्स गोइंग ऑन इन द करंट टाइम एंड प्रैक्टिस दैट। It's like current relevance in addressing suffering and alienation. That's it. ठीक है। थोड़ा हाइफन दो इंग्लिश। मतलब ये जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस लिस्ट आउट किए हैं वो आज के टाइम में भी उतने ही रिलेवेंस है सफरिंग और एलियनेशन को निकालने के लिए। दैट इज द पॉइंट इट्स मेकिंग। ठीक है, जिसको जैसा समझ रहा है समझ लो। मेरा अंडरस्टैंडिंग थोड़ा अलग है, बट मुझे वो समझाते नहीं आ रहा है हिंदी। एनीवे, सो अभी देन द नेक्स्ट पॉइंट इज एथिकल लिविंग एंड सर्विस। आप लोग जो भी जीवन जी रहे हो उसमें एथिक्स को लाओ थोड़ा, और सर्विस में जाओ थोड़ा। सिर्फ डोंट बी सेल्फ सेंटर टू योर सेल्फ, ट्राई टू हेल्प अदर्स, डू समथिंग गुड फॉर देम। कोई क्वेश्चन स्वाति? नहीं। आप अपने डेली लाइफ में इंटीग्रेशन को प्रैक्टिस करो। इंटीग्रेशन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था ना, कि आपका, आपके बारे में जो विचार है अलग अलग, कभी आप ये हो, कभी आप वो हो, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, उसको सबको इंटीग्रेट करके एक बनाओ। इसको बहुत बार हमको है ना, हमारे बारे में, खुद के बारे में बहुत सारे हमारे थॉट्स होते हैं, और हम अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग टाइम में, अलग अलग तरीके से जीते हैं, अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। उनको सबको छोड़ करके एक बन करके जीना सीखो। तो मुझे इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस लगते हैं जो भी अभी तक हमने समझा। फिर आपके जो स्पिरिचुअल गोल्स है और जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको बैलेंस करो। दोनों के एक्सट्रीम में मत जाओ। कुछ लोग एक्सट्रीम में, दोनों एक, कोई वर्ल्डली में एकदम एक्सट्रीम में चला जाता है और कोई स्पिरिचुअल में एकदम एक्सट्रीम में चला जाता है, और दोनों को मैंने स्ट्रगल करते हुए देखा है। मुझे ऐसा लगता है कि
जिसको हम वर्ल्डली रेस्पॉन्सिबिलिटीज बोलते हैं, दे शुड बी इन द सर्विस ऑफ स्पिरिचुअल गोल्स, सो दैट मीन्स यू हैव टू बैलेंस बोथ. ये अभी हमने इसके बारे में बात कर ही ली, ये कॉन्टेम्पलेटिव एंड कॉन्टेम्पररी रेलेवेंस इन एड्रेसिंग सफरिंग एंड एलियनेशन. दूसरा जो मुझे कॉमन थ्रेड दिख रहा है इन सब के अंदर, वो ये है कि ट्रांसेंडेंस में हर जगह पे एक जो कॉमन चीज आती है वो है आपका खुद का ईगो. उस ईगो बेस्ड आइडेंटिटी से ऊपर आना है. मैं ये हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसी हूं, जो भी हमारा आइडेंटिटी ईगो ने बनाया है. एंड आई एम नॉट सेइंग ईगो व्हेन यू आर प्राउड ऑफ समथिंग. ईगो इज समथिंग व्हेन यू आइडेंटिफाई विद समथिंग. इसमें फर्क है. सो उससे ऊपर आना है. और एक कॉमन थ्रेड जो निकल के आता है वो ये है कि ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है. पेड़ पौधे, धरती, मैं, आप, सब लोग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड. तीसरी जो चीज निकल के आती है कि सिर्फ इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग मत बनाओ. बहुत बार मैंने देखा है लोगों को, उन्होंने कोई डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं किया है, वो सिर्फ है ना पढ़ करके इधर उधर से अपने ही दिमाग में अपने ही साथ कॉन्टेम्पलेशन करके और अपनी अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं और उसी से जी रहे हैं. कभी रियल में उसको एक्सपीरियंस किया नहीं, रियल में उसको जिया नहीं, लेकिन उनके पास ऐसे जीते हैं जैसे उनके पास सारी अंडरस्टैंडिंग है उसकी. सो डायरेक्ट एक्सपीरियंस को ज्यादा अहमियत दो देन योर इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग. दैट्स अ कॉमन थ्रेड अक्रॉस लॉट ऑफ थिंग्स व्हाट वी सॉ. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस को ऐसे ऐसे मैं देखता हूं कि एक वो बहुत पावरफुल चीज है हमारे पास, लेकिन हम जैसा उसका प्रयोग करते हैं उसको, मतलब हम उसको है ना बहुत बेसिक चीजों के लिए यूज कर रहे हैं. तो उससे ऊपर उठना है, उसको उठाना है और उसको ट्रांसफॉर्म करना है. दैट्स वन अनदर कॉमन थ्रेड. दूसरा चौथी पांचवी चीज जो समझ में आती है वो ये है कि जो लिबरेशन है, मतलब मोक्ष है, ये दोनों है. ये गोल भी है और प्रोसेस भी है. प्रोसेस भी मोक्ष है और गोल भी मोक्ष है. अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया किसी को कुछ? तो सिंपल में ही लिखा हुआ है. सुमित, अजय भाई, नो सर, सब समझ में आ गया? आ गया थोड़ा सा. वाह, सुबह सुबह समझ में आ गया तो बहुत अच्छा रहता है. जो मेरे कंक्लूजन है, ये मेरे पर्सनल कंक्लूजन है कि मोक्ष जो है ना, ये एक यूनिवर्सल ह्यूमन क्वेस्ट फॉर फ्रीडम है. हम सब अभी हम सब ने अपने आप को किसी न किसी जेल में विलिंगली या अनविलिंगली बंद करके रखा है, और उस जेल से बाहर निकल के जो जगह आती है उस जगह का नाम है, या उस प्रोसेस का नाम है मोक्ष. और ये हर मनुष्य में है.
कि वो इस जेल से बाहर निकले। और मोक्ष, सेकंड पॉइंट, मोक्ष के जो अप्रोचेस है, जितनी डाइवर्सिटी है जो हमने देखी, वो दिखाती है कि ह्यूमन के अंदर कितनी डाइवर्सिटी। आप देखो कितने अलग 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 अप्रोचेस है। आपको सेम लग रहे होंगे, पर अगर आप थोड़ा अंदर जाओगे ना, आपको दिखेगा वो लोग एकदम अलग पाथ पे लेके जा रहे हैं। तो इतनी डाइवर्सिटी हमारे ह्यूमन की डाइवर्सिटी को दर्शाती है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि हमने किसी एक ट्रेडिशन को पकड़ने की जगह पे जितने भी ट्रेडिशंस हैं उनको इंटीग्रेट करके कुछ विजडम को समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। और जिसको ऐसा लग रहा होगा कि हमने कोई ट्रेडिशन पकड़ा नहीं है, तो वो एक नया ट्रेडिशन बन जाता है। कोई कोई ट्रेडिशन नहीं पकड़ना है। लेकिन इंटीग्रेट करना, उसका बेस्ट लेना, उसको समझना, समझने से ये भी तो फायदा होता है कि आपको ये समझ गया कि ये बात नहीं है। और नहीं समझोगे तो पता नहीं चलेगा। सो इट इज, आई थिंक that wisdom from all this tradition should be integrated, or we should learn about all this traditions to maybe sometimes even verify our own understanding. और इसमें जो जर्नी है ना, वो जितना डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट है उतनी जर्नी इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, बात मोक्ष की करते हो लेकिन उसकी तरफ एक्शन कुछ भी नहीं लेते हो, तो डेस्टिनेशन की तरह उसको देखते रहते हैं। पर जितना डेस्टिनेशन इसमें इंपॉर्टेंट है उतनी तो जर्नी इंपॉर्टेंट है, और ये हर चीज में एप्लीकेबल है। तो उस पर भी ध्यान दो। एंड दैट जर्नी इज बेसिकली योर एवरीडे। हर दिन आपकी एक जर्नी है जिसमें आप थोड़ा थोड़ा चल रहे हो। किसी को कोई क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चंस पूछो या थोड़ा फर्दर एक्सप्लोर करो। इसके रेफरेंसेस मैंने यहाँ पे दिए हैं फर्दर एक्सप्लोर करने के लिए। इसमें से किसी को कुछ और अंडरस्टैंडिंग चाहिए हो तो आप देख लीजिएगा। दैट्स इट। तो हमारा 3 सेशन बाद मोक्ष का टॉपिक खत्म हो गया। मैं म्यूट पे चला गया था। अजय भाई, मोक्ष मिल गया क्या? मोक्ष इतनी जल्दी थोड़े मिलता है। हम्म। आप इसमें से कोई चीज कर रहे हो जो मोक्ष के लिए चाहिए, ऐसा अभी तक जो समझा है? नहीं, आपको लगता है मोक्ष जैसी कोई चीज होती है? ना तो है मोक्ष का, लेकिन वो इतना भी इजी नहीं है। हाँ, लेकिन जो हम्म, इजी, देखो बात इसमें कौन बोल रहा है इजी है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने जन्म मोक्ष के लिए लिया है, हम्म, तो उसके लिए कुछ करना भी तो चाहिए, नहीं तो क्या हाँ, करोगे? वो मैंने जो अब पहले भी बताया था ना, कर्म के अधीन जो होता है उसके रिलेटेड जो क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे अपने वो अच्छे और बुरे कर्म का जो होता है हम्म। उसके रिलेटेड वो जो पढ़ा था, वो अब सब ध्यान में रख के वो कर रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, जिससे अपना वो ना बने। मतलब स्कोर।
हाँ ऐसा करना चाहिए जिसमें प्लस स्कोर आए, प्लस स्कोर। यस यस, हाँ बस ऐसा। एंड कितना स्कोर आएगा तो फिर मोक्ष मिल जाएगा। वो नहीं पता है। यही तो प्रॉब्लम है, फिर कभी पास कभी होंगे अपन। तो वो तो बैलेंस शीट तो अपने पास नहीं है ना। ऐसा कैसा सिस्टम बनाया बताओ। अपना बैलेंस शीट अपने पास ही होता है और अपने को ही पता होता है क्या डालते हैं क्या नहीं डालते हैं। हम्म। क्या डालते क्या नहीं डालते वो तो है, लेकिन अब कितना प्लस हुआ कितना माइनस हुआ वो टोटल तो इतने सालों का जो होगा वो तो अपने पास नहीं है ना अभी। क्यों नहीं है? हम जो करते हैं हमको ही पता होता है ना। वो तो अब अभी का ये जन्म का पता होगा, अगले जन्म का थोड़ी पता है कि हाँ, आगे का मैं तो क्या है क्या नहीं। अगला पिछला जन्म में मैं नहीं मानती तो इसमें नहीं बोलूंगी कुछ। अजय भाई, हम्म। देखो उनको नहीं, वो नहीं मानते तो अभी उनके लिए एप्लीकेबल है, उनका ये जन्म का एप्लीकेबल है। अच्छा हाँ, वो सही है। मेरा तो इसी मोमेंट का एप्लीकेशन चलता है। अच्छा। 1 घंटे के बाद क्या करेंगे वो भी पता नहीं है। वही देखो, वही वही बोल रहा हूँ, स्वाति बहन का अपना लॉजिक है, आपका अपना लॉजिक है, लेकिन हम्म। क्या है, लगता है क्या है कि अगर हम दोनों ह्यूमन हैं, हम्म। हम सब अगर ह्यूमन है तो लॉजिक तो साला एक होना चाहिए ना। ऐसा अलग अलग रूल कैसे? स्वाति के लिए अलग रूल एप्लीकेबल है, अजय के लिए अलग रूल है, सुभाष के लिए अलग है, मंथन के लिए अलग है, परीक्षित के लिए अलग है, जनीश के लिए अलग है, सुमित के लिए। ऐसा कैसे बना है? कुछ तो एक ही होगा ना, या तो आप गड़बड़ कर रहे हो या तो वो गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ वो तो, लेकिन वो अब सबकी थिंकिंग और क्या बिलीव करते हैं उसके ऊपर डिपेंड रहता है। अरे वो बराबर है, लेकिन एक होना चाहिए कि अलग अलग होगा? अलग अलग। अलग अलग कैसे होगा? क्यों अलग अलग होगा? क्यों नहीं होगा? मेरा मोक्ष का डेफिनेशन अलग है, मेरे मोक्ष के तरीके अलग है। डेफिनेशन जो अलग वो है, बोले तो बट हाँ तो सच सच है कि कैसे मालूम आपको? आपका ही सही है कैसे मालूम? नहीं सही। जो मुझे सही लगे, मतलब मुझे सच में ऐसा लगे कि नहीं ये कुछ मैंने इसमें कुछ गलत नहीं किया, किसी का कुछ गलत नहीं किया, किसी के लिए कुछ खराब नहीं किया, मेरी वजह से किसी को नुकसान नहीं हो रहा, तो मुझे लगता है ये 70-80% तो मोक्ष हो गया। हाँ, पर उसके आगे का पता नहीं है। मैडम आपको लगता है ना, वो सत्य थोड़ी है। हाँ, क्यों नहीं? मैं जो कुछ भी करती हूँ उसको एनालाइज भी करते हैं ना, कि भाई मैंने ये किया तो गलत किया कि सही किया। जो सबसे पहले तो मुझे पता मैं है बोल कि मैं रहा हूँ, गलत कर रही मैं हूँ, सही मैं कर नहीं रही बोल रहा हूँ कि आप एनालाइज नहीं करते हो, मैं बोल रहा हूँ ये गलत सही वाले से ही मोक्ष मिलता है, ये कैसे मालूम आपको? ये तो आपको हूँ। लगता है। मालूम तो आपके किसी भी तरीके से भी नहीं है, लेकिन वही तो मैं बोल रहा हूँ हाँ, कि मालूम नहीं है, ऐसा लग रहा है। हाँ, मालूम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये इतना काफ़ी है शायद। इससे ज़्यादा मोक्ष कुछ होगा नहीं। हाँ ऐसा वही तो मैं बोल रहा हूँ, मेरा मेरा मैं आपको जो लगता है उसको रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, अजय भाई को जो हुँ, लगता है उसको भी हुँ, रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग एक ह्यूमन है हुँ, तो होना तो एक ही चाहिए ना, एक ही सिस्टम होना चाहिए ना दोनों के लिए। ये दोनों दो के लिए अलग सिस्टम कैसे हो सकता? हाँ आप अलग ट्राई कर रहे हो, अजय भाई अलग ट्राई कर रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट हुँ, अल्टीमेटली तो एक ही होना चाहिए, या तो तभी तो ये बनेगा ना कि हम सब ह्यूमन है और हमको हमको हमारे लिए purpose है। हुँ। हमको समझ में ही नहीं आ रहा है अभी कोई कौन सा है इसमें से, तो हम सब लोग अपने अपने हिसाब से लगे पड़े हैं। मंथन भाई कुछ रोशनी डालो इस पे। मतलब मंथन भाई आपकी रोशनी कहाँ है? डालो इस पे। एक्चुअली કર્મની જે થિયરી છે ને એ બહુ કોમ્પ્લિકેટેડ है એટલે हिंदी એમાં हिंदी। कर्म की हिंदी जो हिंदी थियरी है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसमें भी मतलब पढ़ने जैसा नहीं है। ओके, एंड एट द एंड व्हाट आई थिंक दिस इज अच्छाई जो मतलब हमारे दिमाग में डाला गया है, और हमें जो भी हम हमारी
हमें जो भी फीड किया गया है हम वही बिलीव करते हैं, और मतलब नो वन हैव सीन द मोक्ष, किसी ने आफ्टर लाइफ देखा नहीं है। सो और आई बिलीव कि इट विल बी ओनली वंस, मतलब वन डेस्टिनेशन फॉर एवरीवन, मतलब हमारे लिए, इस्लाम के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए, क्योंकि देर इज ओनली वन गॉड। तो मतलब जो अगर वो थियरी में जाए तो, बिकॉज थियरी भी मल्टीपल है, और एट द एंड किसी को कुछ भी पता नहीं है। सो मुझे भी कुछ पता नहीं है। हम्म। किसी को कुछ पता नहीं, ये तो ठीक है, पर किसी को कुछ पता नहीं हो सकता, that पता is तो dangerous. किसी, सबने ट्राई किया है, बट कि कोई मतलब, आप सारी फिलोसॉफी देखो, दे जस्ट गिव यू द पाथ to live the happy life, or give out of your stress, give out of your sorrowness. Okay. So some theories believe in God, some theories don't believe in a God. But at the end, no, because there is, each question will generate another few questions. Okay, because there is no end of. Can I ask you one thing? Yes, sure. Do you think you will be able to build $1 million, or let's say $10 million company in this lifetime? Yes, I can. Right? Now, do you think you can find the path to liberation in this lifetime? The question is whether, like, let's say in your first question, it's a define. Like, okay, it's a 10 million. Okay. So I Hmm. can make it. Okay. It's a tangible, I can touch it, I can know, and it's a define. Okay. Because you make a certain perspective. Like, let's say 10 million is a money. It either, you haven't mentioned like it's 10 million profit or 10 million turnover. Okay, but I consider 10 million turnover. So that can be done. Okay. Now your second question is liberation. So liberation is not tangible. Liberation for me is like, let's say I just sit back, relax in my room. No one is speaking with me. That is liberation also for me. No, no, no. I know that is liberation for you, but I'm telling you as humanity, आपको आपको लगता है क्या कि आप वो डिफाइन भी कर पाओगे और पूरी ह्यूमैनिटी को उसमें एनरोल भी कर पाओगे? No, it's not possible. राइट नाउ मेरा ये कहना है कि आप ये चॉइस आपने किया, ये रियल है, ऐसा ही होगा ये पता नहीं, बट ये चॉइस क्योंकि आप कर रहे हो कि ये मैं बना सकता हूं और ये मैं नहीं बना सकता हूं, नाउ नहीं बना सकता हूं मैं, आप एक्शन ही नहीं लोगे. Nahi bana, they, let's say that you have shown like, let's say more than like 20 paths. Okay. The only thing, like, let's say, let me correct, I'm only speaking English because મારું હિન્દી આપણા CM જેવું છે. Okay. So, you have shown multiple, like more than 15 to 20 ways to achieve liberation, moksha. Okay. But there are all this method are having a technical glitch on all this. Like, let's say, if Christianity or Islam or Judaism don't believe in birth, okay, so they should get moksha. They are getting moksha because for a Hinduism, moksha is ke janam, okay, life and birth and death thi bahar aao. Okay, there is a no rebirth. That is for a Hinduism. Okay, so all the Christians, all the Muslims, all the Judaism, they are already getting uh, moksha, or without any, without doing anything, because they are coming out of this rebirth thing. So that is one perspective. Okay. So for them, the moksha is that, okay, whatever good and bad activities you did, okay, it should be nullified, but that is not possible. Okay, as Ajay bhai know, like there will be no zero at the end of a financial year. There will be, everything will be either plus or minus. So
it's not possible to make it zero any time in the life. Okay, and what is good karma, what is bad karma, that is also not possible to mention, because if I'm doing some activity, okay, or if I'm feeling one activity is good for me, it might be possible it's not good for other people. हेलो। Yes, sir. आप तुम्हारी आवाज, आपकी आवाज बंद हो गई थी। I'm done. I'm done. सो आई गॉट योर पॉइंट। मुझे क्या लगता है उसमें कि ये लोगों ने, सपोज अज्यूम करते हैं कि इन जितने भी लोगों ने वेव्स बनाया है अभी तक, जो भी वेव्स प्रपोज हुए हैं, एक्सपेरिमेंट हुए हैं, वो उसमें से एक भी वे सही नहीं है। एक भी वे सही नहीं है ये बोलना भी गलत होगा। ठीक है, मैं बोलता हूँ चलो सही है, पर हमको शायद पता नहीं है, हमने पूरा एक्सप्लोर नहीं किया। प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ये है कि हम जब क्वेश्चन पूछने जाएंगे किसी भी रिलीजन किसी भी थिंग का, सो एंड ऑफ द क्वेश्चन कि ये गॉड ने बोला है, बट गॉड कौन है पता नहीं। ओके, एट द एंड सारे क्वेश्चन का एंड यही पे होगा, गॉड। सो गॉड इज अ बिलीफ सिस्टम कि आप इस मतलब इस बिलीफ पे गॉड पे बिलीव करते हो, तो आपको लगेगा कि ये गॉड ने बोला है, खत्म। मतलब उसके आगे क्वेश्चन ही नहीं आएगा। मतलब आप जाओ कि दुनिया किसने बनाई, भगवान ने। ओके, और भगवान को किसने बनाया, नो क्वेश्चन, इट्स अ नेचर, इट्स अ यूनिवर्स। सो इसमें भी यही है कि मतलब आप जैसे मतलब मेडिटेशन आपको मोक्ष देगा, कि सारे लोग मतलब कि किसी भी फिलोसॉफी में जाओ कि मेडिटेशन आपको मोक्ष देगा, बट इट्स टेम्पररी मतलब बिकॉज उससे भी आप हैबिचुअल हो जाओगे, फिर यू कैन गेट द पीक ऑफ दैट मेडिटेशन वेरी ऑफन। हाँ, यू कैन कंट्रोल योर थॉट्स, यू कैन से हाउ हाउ क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, बट जब आप सोचते हो कि क्या नहीं बोलना है, वो भी स्ट्रेस देता है, बिकॉज आपको पता है कि सामने वाले को आपको मुंह पे बोलना है कि भाई साहब तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, या तुम्हारे में दिमाग नहीं है, बट बैक ऑफ द माइंड जो आपने सोच के रखा है कि मतलब कंट्रोल करना है, इमोशन कंट्रोल करना है, और सारे थॉट्स, सामने वाले को बुरा नहीं लगना चाहिए, तो दैट इज ऑल्सो गिव यू स्ट्रेस। सो अगर स्ट्रेस है तो मोक्ष नहीं। सही बात है, पर मुझे मेरा मेरा क्वेश्चन मंथन भाई ये है कि मैं बोलता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से अच्छे से अभी शायद एग्जिस्ट नहीं करती है। व्हाट आई एम आस्किंग यू, डू यू थिंक you would take on this as your life goal for this life to invent that technology? आई कैन, ओके, यू ऑल, आपने अभी 15 लोगों की पूरी लाइफ बता दी कि ये 15 लोगों ने अपनी पूरी लाइफ डाल दी है सिर्फ ये ढूंढने के लिए कि मोक्ष का पाथ क्या है। ओके, हम्म। और वो लोग भी नहीं ढूंढ पाए। आई एम बराबर, लोग नहीं ढूंढ पाया। 100% श्योर। ओके, वो लोग Yeah. भी नहीं पाए, क्योंकि उनको भी फॉलोअर होंगे 1 मिलियन 2 मिलियन मैक्सिमम 10 मिलियन। ओके, और everyone is having मतलब different mindset. There is only one way to convince yourself is that you know nothing from this entire universe. हाँ, जानना जरूरी है कि कैसे लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, कि ऐसा इस टाइम पे उसने ऐसा क्यों सोचा होगा। वो ऑल दिस इज नीडेड, जस्ट मतलब आपने जो भी बताया वो नीडेड है कि ये बंदा इस टाइम पे ये डिसीजन क्यों ले रहा है।
आई एम नॉट सेइंग कि मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष है कि नहीं है, बट ये भी मेरा क्वेश्चन है कि अगर हिंदुइज्म के लिए मोक्ष का जो नॉर्मल डेफिनेशन है, जो मैंने पहले भी रिपीट किया, कि जन्म मरण के विष चक्र से निकलना है, तो वो तो वैसे भी मिल रहा है। तो क्रिश्चियन, तो आई जस्ट गॉट कन्वर्टेड इन क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा क्योंकि मैं वहां से तो निकल ही गया हूँ, मेरा रीबर्थ। ये मोक्ष मिलेगा थोड़ी आपको वो। अरे बाबा, देखो अगर मोक्ष मिल रहा होता, वो तो उनका डेफिनेशन है, इसलिए वो ऐसा अज्यूम कर ले रहे हैं कि मिल रहा है। पर रियल में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो कैसे पता? वही वही है। ऐसे तो हम डेफिनेशन, सपोज आपने और मैंने एक डेफिनेशन बना लिया कि अगर मैं आपको एक वाइट ब्लैंक पेपर के 10 टुकड़े देता हूँ तो वो $10 बिलियन है, और आप मुझे देते हो 10 बिलियन, हम दोनों का तो ये तो डेफिनेशन हम बना करके हम बिलियनर बन के घूम सकते हैं ना, मन में सोच के। यस, उससे उससे वो ट्रूथ है या वो वही है रास्ता, वो नहीं मालूम ना। पब्लिक बिलीफ इज ट्रूथ, मतलब अगर नहीं, एक दैट इज ऑल्सो व्हाट आई एम सेइंग कि अगर पब्लिक बिलीफ मतलब अगर मेजोरिटी की बात करें, तो मेजोरिटी तो हमने हिस्ट्री में देखा है ना कि वो रॉन्ग रहा है। मेजोरिटी यूज्ड टू बिलीव दैट कीपिंग ब्लैक्स एज स्लेव्स इज द वे टू लिव, वुमन हैविंग नो राइट्स टू वोट इज द वे टू लिव। सो ये तो हमने देखा है, और वो मेजोरिटी बिलीव करता था उस टाइम पे। इट इज वाज नॉट माइनॉरिटी बिलीविंग, मेजोरिटी वाज बिलीविंग दिस इज द वे टू लिव, दिस इज हाउ इट शुड बी लिव, and it continued for thousands of years. Then some people, minority came up and says कि no, this is wrong, and then धीरे 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 they carved the ways and they asked people to transform their thought process around that. So जो majority में चल रहा है, that could of course be wrong. That's what I'm thinking. नो यू, તમે સાચા, यू आर, आप बिल्कुल सही हो, ओके, बट इन लोगों ने भी ट्राई किया है, जो आप बोल रहे हो कि इन लोगों ने भी वही। हाँ, इन लोगों ने भी ट्राई किया है, Okay. पर मुझे लगता है कि उन लोगों ने ट्राई किया है, इसका मतलब हम हम नहीं वो करें, फेल हो गए और हम नहीं कर पाएंगे, ये मुझे वो सेंस नहीं बनाता। नहीं वो, ये बिल्कुल सही है। I don't understand. सॉरी, डोंट अंडरस्टैंड। તમારું ગૂગલ વાગી ગયું। एआई भी बोले आई डोंट अंडरस्टैंड। सो बिल्कुल सही है, बट इट्स ऑल अबाउट लाइक, मुझे मेरा टाइम इन्वेस्ट करना है इसमें, या आई जस्ट नीड टू थिंक व्हाट रेस्ट ऑफ द पीपल थिंक, या राइट। मेरा जो भी, मतलब स्वाति मैम ने बोला कि जैसे उनका एक फिलोसॉफी है कि रीबर्थ नहीं है, तो उनको तो अभी से मोक्ष मिल गया, बिकॉज देयर इज नो रीबर्थ। स्वाति बहन, आपको क्या लगता है? मुझे तो दिन में 10 बार मोक्ष मिलता है, 10 बार वापस आ जाता है। Hmm. उनका अलग ही पूरी दुनिया चल रही है। और अभी मेरे पीछे ना बहुत सारे बर्ड्स बोल रहे हैं, तो उसमें मुझे तो उसमें भी मोक्ष लगता है। मुझे लगता है यही होना चाहिए, It's इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। a satisfaction, not a moksha. हम्म। Pleasure. मोक्ष क्या है? मोक्ष पा के आप मतलब क्या सोच रहे हो? मोक्ष मिल जाएगा तो क्या लगेगा आपको? वो भी सेटिस्फेक्शन ही है ना। वेरी गुड क्वेश्चन। चलो, गुड डिस्कशन। आज मुझे ना थोड़ा सा एक जगह जाना है जल्दी, तो और हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है, और सुजन भाई अभी एंट्री ले रहे हैं। सुजन भाई, वेलकम। मुझे नहीं पूछोगे कि क्या होता है? तुमको भी पूछना ही है। बताओ शिखा, बताओ क्या तुमको क्या लगता है मोक्ष के बारे में? सीखा से हमें जैनिज्म सीखना था, क्या करना है? जैनिज्म बाकी था। हाँ, जैनिज्म बाकी रह गया ना, वो आई नहीं, आज भी नहीं आई है वो श्वेता। चलो, वो आएगी उस दिन, करते हैं मंथन भाई। जैनिश याद रखना। उसको बोलना पूरा सेशन वो ले ले हम्म, जैनिज्म को।
हाँ वैसा करते हैं। जेनिश, श्वेता को बोलते हैं जैनिज्म पे सेशन लो। यस शिखा, यू कैन शेयर what you think about मोक्ष। um I don't like यानी मुझे सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, तो यानी मैं मानती हूँ ये सब्जेक्टिव भी है कि हम लोग क्या बिलीव करते हैं। बाकी अल्टीमेटली जब हम लाइफ जीते हैं तो हमको पता चल ही जाता है कि मोक्ष एक्चुअली क्या है। और मुझे पर्सनल लेवल पे ऐसा लगता है, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, मोक्ष तब होता है जब आपको, मुझे ऐसा लगता है कि हमको भेजा जाता है यहाँ पे किसी चीज के लिए भेजा जाता है। जब वो पर्पस हम लोग सर्व कर देते हैं तो अल्टीमेटली हम लोग उस टारगेट को अचीव कर लेते हैं जो हम जिसके लिए हमको भेजा गया है। और उसके बाद वो मोक्ष का द्वार ओपन होने लगता है कि नाउ यू कैन गो फ्रॉम हियर। बिकॉज आई डोंट जस्ट बिलीव कि हम सिर्फ अर्थ है, ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, ऐसे बहुत सारे वहाँ हैं और लाइफ फॉर्म्स हैं जिसमें हम जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि फ्री विल से हम लोग जाते हैं वहां पे। ये अर्थ है या वो अर्थ है, या ये लाइफ फॉर्म है या ये वो लाइफ फॉर्म है, बर्थ लेना है नहीं लेना है, ऑल दोस थिंग्स। पर वो जो मकसद जिसके लिए भेजा जाता है, तो प्राइमरली मुझे लगता है कि मकसद वही होता है कि हम संतुलन कैसे बना रहे हैं हमारे आसपास, हमारे आसपास एक बैलेंस कैसे बन रहा है, एक उन्नति की तरफ या प्रगति की तरफ हम लोग कैसे जा रहे हैं। नॉट जस्ट अस बट along with us एनिमल्स, नेचर, एवरीथिंग बैलेंस में कैसे बनता जा रहा है वो। तो मुझे लगता है कि जब हम वो थोड़ा अचीव कर लेते हैं, एटलीस्ट हमारे आसपास कर लेते हैं या फिर अर्थ पे कर लेते हैं, डिपेंडिंग अपन हमारा कैसा प्रभाव है, कितने लेवल तक का प्रभाव है, अगर वो हो जाता है तो अल्टीमेटली एक डिटैचमेंट आना शुरू हो जाता है। और मुझे लगता है जब वो एंटर करने लगता है लाइफ में, फोर्सफुली नहीं है डिटैचमेंट, यानी गुस्से से नहीं, हताशा से नहीं, कोई नेगेटिव वे से डिटैचमेंट नहीं, पर एक पॉजिटिव वे से कि हाँ मैंने अब मेरा काम कर लिया है, अब मैं धीरे धीरे यहाँ से जा सकती हूँ या जा सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे जब वो छूटता जाता है ना, तो वो ही वो हमको मोक्ष, वही मोक्ष है एक्चुअली, वही धीरे धीरे वही लेके जा रहा है। और बस यानी वो एक, मैं नहीं कहूंगी एक प्लेस है, एक जगह है जहाँ पहुंचते हैं तो हो जाता है, बट एक सिचुएशन है जहाँ जाके उसकी प्राप्ति हो जाती है कि हाँ नाउ माय वर्क इज डन, माय ड्यूटीज आर डन, एंड नाउ आई कैन गो wherever I want to go. My next journey starts, or my all the journeys are completed. Okay, हो गया मेरा। So do you think that the whole world believes the way you believe about moksha? No, that's what I said, na. It's my personal opinion. So now my question is, now you think your personal opinion or this idea about moksha is the true path to moksha, or you are, I mean, are you 100% sure, or you still have opening ke bhai nahi, you may be wrong? This is like, this is not, this is right for me. I'm not sure about others because I'm living my own life. हाँ, so क्योंकि now, बहुत छोटे से मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैं इस यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ये क्या है। जब लोग मेरे 1 साल की या 2 साल की, जब इंसान को जब कॉन्शियसनेस आने लगती है कि नाउ यू आर हियर, अब मैं उसको वॉइस दे सकती हूँ। पर उस टाइम में मुझे क्या फील होता था, वो ऐसा था कि ये क्या जगह है और मैं क्यों आई हूँ यहाँ। सो दैट क्यू इज कैरिड थ्रू मी all my years on this earth. सो मैं तो हमेशा सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ चीज के लिए हमको भेजा गया है, वो हो जाएगी तो हम लोग जा सकते हैं। और वो कुछ ना कुछ चीज में हमारे साथ जो रिश्ते जुड़े हैं, उनकी उनकी ड्यूटीज आती हैं, हमारे समाज की तरफ आती हैं ड्यूटीज, हमारे कंट्री के लिए, वर्ल्ड के लिए, अर्थ के लिए, मदर नेचर के लिए, सबके लिए जो भी हमारे हैं उन सब के लिए हमारी ड्यूटीज आती है, जब फुलफिल होंगी तो बस एक
आ जाएगा मोक्ष का, वो अपने आप ओपन होने लगेगा। हाँ, पर मेरा क्वेश्चन ये है कि if you think your personal path and you are so sure, are हम्म you are you willing to dedicate your life to enroll everybody on earth that this is the path to moksha? No, I am not into that, because I always believe that everyone has a free will. I'm a strong believer of that. Free will and a freedom. Freedom is real freedom is a freedom to choose to do what you want and what you need. So I can't impose my belief on others. I can influence them through what I do. Through my example, I can inspire them, but I can't force through my talk, right? Because this is very personal. They have to experience it to do it. मेरे बोलने से नहीं होगा, मेरे करने से और वो दिखने से, उनमें अगर दिखने लगा तो बात अलग है। और it is not important to me whether they do it or not, because everyone is on their own journey. So they will down the line explore their own path. दिस इज नॉट अ सेट रूल। ये वो स्कूल का वो नहीं है कि भाई घंटी बजी और हमको पीरियड पूरा हो गया, फिर दूसरा पीरियड स्टार्ट होगा तो हमको दूसरी बुक निकालनी है। दिस इज नॉट अ रूल बुक, दिस इज लाइफ। सो आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ फ्री विल। नो वन no one has to push anyone to follow any path. If they are willing to do so, it's their own choice, their own And free why will, do you freedom. all this uh, Upanishads and Vedas, or all the scriptures that propose the way to life? Why did they write when it has to be open for everyone to discover? And so they are kind of telling that ye path follow karo. They are kind of forcing. No, our Hinduism is like that. Islam is not like that. I'm sorry if someone is from that faith. They are very strict about it, that this is the only way. Upanishad, that's the beauty of Hinduism. Na? They say that this is it, but they give you the free will to ask a question. That's the beauty of this dharma. What I'm trying to ask you is, if Huh. doing it, then why don't you feel comfortable putting your thoughts and saying people, okay, yaar, this is the thought. Why don't you try this? Accept this. Why are you But why resisting? I will force anyone to do that? Everyone, it is like, it is not a robot who will follow my instructions, right? एक मिनट स्वाति कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ, कोई बोल रहा है नहीं क्या? नहीं सॉरी, मेरा अनम्यूट था। So Vedas, and everywhere, like we have 4 Vedas, we have Upanishads, right? Everywhere it's a different way to connect to a life. In a Veda, in some Veda, it's about music. So they try to achieve certain things through music. Like a rag is there, right? Rag Bhairavi is there. So many rags are there. They use this rag they use to that level that they can bring rain on the earth. Such a power of a music is there. So through music you can attain this spiritual awakening. Okay, so there are so many paths, so there is no set rule book. You can achieve it to different paths to get that, No, what but you feel like is final destination. all of our design as humans is same design. We are same humanly designed people. Then the path should also be the same. No. Even if we are same, if we are in design, we are so different. Everyone is unique. Everyone has his unique set of abilities. Why everyone is not a public speaker? Okay, why everyone is not a accountant? Why everyone is not a doctor? Why everyone is not a painter? Why everyone is not a actor? Right? Everyone is born with a unique set of abilities. Everyone is born with a unique set of unique bent of mind, where they want to do, what they want to do, and how they want to do it. In acting also, not everyone can do a comedy, right? Not everyone can do tragedy, because it has unique sensibilities, a unique I will say a unique talent to do it, a unique bent of mind, like So do you I, mean that hmm.
What? Do you mean that? Do you mean that because if you're saying that this way we are different, then the paths or moksha for everybody will be different? Yeah, some can attain it through. There are if you could call about if you say Hinduism, um, or if you take Islam, right? For them, there is only one way. That is a bhakti marg. Like for them, there is only one way is ibadat. Through ibadat of one true Lord for them is through which they will get the Jannat or whatever it is there. I don't know if they have this moksha thing for them, but that's what they will attain. They go to Jannat if they do certain deeds in accordance to the Islam, right? In accordance to what is written in their book. Okay, so for us, like for who are Hindus, for us there are so many margs: Bhakti marg, Seva marg, right? For Sikh it is predominantly Seva marg. So there are so many ways that you do it and you feel that is right, and all those ways are attuned to welfare of the society at the end, right? Or not harming the society and working for their welfare, working for the welfare of all the beings around you ultimately, because we are not alone. Even though we are different, we are connected, right? In some unique way, right? um I am connected to someone who's sitting in US who is my best friend, right? But she's sitting like 1,000 and so like 1,000 of kilometers from me, but still she's connected, right? So distance, time, and all those things doesn't matter considering the uniqueness and the flavor of the relationship that you share with others, right? And that relationship or that connectedness that you share with others eventually impacts your own decisions and your own way of how you are doing things. Ultimately, this will go flow into a moksha. I know this is like off topic, but all things will round about you to go to a place where you attain that freedom, that final freedom that you can say, because sometimes people do feel wounded in this body, right? But they have taken this body to do certain goals, certain tasks, or if not task, your task is to live your life, whatever is given to you. If you even if you do that only, that's your goal. But eventually we know inside of us that tells us to do certain things, and if we do that, um, we feel that our work is getting completed. Finally, at one day, you will realize, okay, I think this all things that we need to do, and we have done it. We as a human, we did it collectively, or as a individually, I have done it. At that point of time, your journey starts towards the other destination or the final destination, whatever you decide or whatever is given to you. Okay. Sujan, you have something? या है वैसे बहुत कुछ, लेकिन अभी लंबा चलेगा। सेशन एंड हो रहा है ना। हाँ पर बोल 5 मिनट है। वही एनलाइटमेंट जब आपको हो जाता है तो वही मोक्ष होता है। देन यू हैव अ चॉइस। एनलाइटमेंट मतलब ज्ञान। एवरीबॉडी इज सीकिंग आंसर्स टू देयर क्वेश्चंस, और वो जब मिल जाता है तो एक स्टेट होता है जैसे एक लेयर है अपने लाइफ एंड डेथ के बीच में, तो वो एक स्टेट हो जाता है एंड देन यू चूज कि आपको बॉडी लेना है नेक्स्ट, या अभी हो गया आपका। वो जो स्टेट है माइंड का
कॉन्शियस जो आपका हायर कॉन्शियसनेस का, उसको मोक्ष कहते हैं। Okay. So, do you think you will get moksha this lifetime? मिल गया मुझे तो। ओहो, फिर गलत आदमी सेशन ले रहा था स्वाति। पार्टी हो जाए। पार्टी भाई, पार्टी मत बोलो इधर। उसमें भी मोक्ष मिलता है तो क्या गलत है? हाँ, वो आज जो मोक्ष मिला है ना, वो मेरे को लग रहा है कल की पार्टी का असर है। आज राइट। सही नहीं पकड़े। नहीं, कल का नहीं है, अभी 2-3 दिन पहले का है। 2-3 दिन पहले। सही है, गुड गुड। तो अभी मोक्ष का टॉपिक खत्म हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टाइम चालू करेंगे। एंड सी यू गाइस सून नेक्स्ट सैटरडे। सुभाष, हाँ, सुभाष, 2 लाइन ये 3 सेशन के बाद मोक्ष के बारे में तुम क्या कहोगे? मैं ये कहूंगा कि अभी तक कोई मोक्ष को समझ नहीं पाया है, उसके रास्तों को इस तरीके नहीं डिफाइन कर पाया है कि जिसमें पूरी ह्यूमैनिटी को मोक्ष मिल जाए। तो हमें एक नया अटेम्प्ट करना चाहिए टू डिफाइन एंड टेक द डेफिनेशन टू एंटायर ह्यूमैनिटी। और ये मतलब जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा था मंथन भाई को कि इफ यू वुड लाइक टू डेडिकेट योर लाइफ, आई हैव डिसाइडेड टू डेडिकेट माई लाइफ टू दैट। कि सुनते हैं, फाइंड करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। सो अपने लिए मोक्ष क्या है तुम्हारे लिए? मुझे पता नहीं, मैं ढूंढ रहा हूं। हम्म, मैंने वही बोला ना, मैं ढूंढने में लाइफ डालूंगा हम्म, और ढूंढ के फिर लोगों तक पहुंचाने में। गुड, ढूंढो, मान मत लो किसी की बात। एग्जैक्टली, वही वही मेरा है। हम्म, ओके, परफेक्ट। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय। बाय। थैंक यू। बाय। Thank you.